ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಜ್ಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸತತವಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಾವೀದ್ ಎಂ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com ಅಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಜಾವೀದ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಜಮಾದಾರ್. ನಾವು ಉಜ್ಗಾವಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಈಗ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಜ್ಗಾವ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ ನಾವು ಈಗ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, ತಾವು ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಕರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ತಾವು ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡಿ ಅದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಈಗ ಕೊರೋನಾದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಒಂದು PSC ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋರಿ ಅಂದರೆ ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಊರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು 3 ಸಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಊರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ 3 ಊರು ಬರ್ತಿದ್ರಿ. ಆ ಎಲ್ಲ 3 ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬಸೂರ್ತಾ ಒಂದು, ಕೋನೆವಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಜ್ಗಾಂವ್. ಆ ಮೂರು ಊರದಾಗ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ 3 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 3 ಸಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ತಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ? ತಾವು ಆಗಿರಲಿ, PDOs ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರ ವತಿಯಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಾಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋನೆವಡಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐತಿ, ಶೆನೋಳಿ ಹದ್ದಿ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೈತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸನಗಳು ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ರೀ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ PDO ಕೂಡ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಊರಾಗ ಆದ ಕಚರಾ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ದು ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ರಿ. ಆ ಮೊದಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿನ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಇದೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕ್ಯಾಸ ಏನು ಊರಾಗ ಏನೇನು ಐತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದು. ತಾವು ಮರಾಠಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾ, आप ये बताएं कि अभी जो आपने बातचीत की है हमसे कन्नड़ में, वही बातचीत आप यहाँ की स्वच्छता के लिए हो या सैनिटाइज के बारे में जो आपने बताया, मास्क वितरण के बारे में आपने बताया, और बॉर्डर्स में रहने की वजह से वहाँ पे बैरिकेड्स डालकर पुलिस का जो सुविधा आपने यहाँ पे किया था, ये सारी बातचीत हिंदी या मराठी में आप हमारे दर्शकों को बताया. ठीक है, हिंदी में बताता हूँ मैं. सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा चेक पोस्ट था, जो आपने बताया कि बाबा बॉर्डर का आपका जो प्रॉब्लम है आप कैसा फेस किए, उसके लिए हम क्या किया, हमारा गवर्नमेंट जो है वो सबसे इधर चेक पोस्ट लगा के उसे बॉर्डर पे सील किए थे. और जो भी कोई इधर अंदर आता था उनको कंपल्सरी वो चेक करके ही छोड़ते थे कि बाबा उनका क्या है. रैपिड टेस्ट करते थे उनका, रैपिड टेस्ट करके उनको अंदर छोड़ते थे. जो महाराष्ट्र बॉर्डर से अंदर आना चाहते थे उनको कंपलसरी ये रैपिड टेस्ट करके ही भेजते थे. और आपने बताया कि
कोरोना का टाइम पे क्या क्या हुआ, तो उस हिसाब से हमने जो गांव में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पूरा गांव सैनिटाइज किया, 1 से 3 मरतबा किया। हमारे गांव में 3 गांव आते हैं, एक उजगांव, एक बसुरता और एक कोनेवाड़ी। ये तीनों गांव के हमारे जो गांव के मेंबर लोग हैं वो सभी मिलके हमने ये किया कि बाबा हम गांव को कैसा स्वच्छ कर सकते हैं, कैसा हम उसके पर ज़्यादा त्वचा दे सकते हैं। वो हिसाब से हमने सभी मिलके हमारे एक गांव के मेंबर का जो ट्रैक्टर था वो लेके हमने 3 मरतबा पूरे गांव, तीनों गांव हमने सैनिटाइज किया। उसके बाद में हम हर एक के घर पे जाके हमारे आशा ताई वर्कर जो है उनके साथ जाके हर घर डोर टू डोर जाके बोला कि हमने अभी जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उसके लिए आप सभी मिलके हमने उनको रिक्वेस्ट की कि बाबा आप जाके जो वैक्सीन है आप जाके कंपलसरी लो, क्योंकि आगे आपको उससे अगर बचना है तो वो ज़रूरी है कि आप उससे इस वैक्सीन लो। तो आपसे मैं ये बात कहना चाह रहा था, अभी तीसरा स्टेज अभी जारी होने वाला है, इसका परिणाम महिलाओं पर और बच्चों पर ज़्यादा असर होगा, ये सरकार ने अनाउंस भी किया है। इसके बारे में आप अपने विचारधारा के तहत आपके अपने सिब्बंदी और सदस्यों को मिलाकर मीटिंग करने के बाद इसके क्या नतीजे पर पहुंच रहे हैं, इसको कैसे अवॉइड करेंगे? ऐसा तो अभी तो कंपलसरी हमने सभी को बोला है कि बाबा आप कंपलसरी जो फर्स्ट वैक्सीन सेकेंड वैक्सीन जो है आप लो, उसके बाद में जो है उसके बाद मास्क कंपलसरी आप डालो, रेगुलर सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो, और जो है इसके बाद में जो भी है वो जो हम सोशल डिस्टेंस रखो और प्रिकॉशन जो हम ले सकते हैं कि बाबा हमारा सेफ्टी फर्स्ट, हमारे सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं वो आप पूरा प्रिकॉशन लो, और मास्क भी आप डालो। वो पूरा हमने उनको मीटिंग में हम इसके ऊपर चर्चा करके वो ये किया है। अच्छी बात है सर। मैं ग्रामीण के बारे में बातचीत करते हुए इसके हिसाब से जो कोरोना काल के आखिरी सवाल करते हुए बाद में डेवलपमेंट के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी खुदी से हो या एमएलए फंड से हो, एमपी फंड से हो, लॉकडाउन शीलडाउन के मौके पर ये मिडिल क्लास फैमिली हो या लोअर फैमिली वाले हो, कहीं बाहर नौकरी पे नहीं जा सकते, कामकाज नहीं कर सकते, उनके खाने पीने की व्यवस्था बहुत कठिन हो गई थी। ऐसे माहौल पर आप लोगों ने क्या कदम उठाया, उनके लिए कुछ पैकेजेस हो या खाने का इंतजाम कुछ किया? हाँ किया, पैकेज सब तो सुविधा हमने किए थे। कोई हमारे गांव में जो बड़े लोग हैं सभी मिलके थोड़ा थोड़ा उनको पैकेज का ये डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि उनको भी तकलीफ ना हो सके कि बाबा जैसे कि मिडिल क्लास लोगों को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ काम पे नहीं जा सकते, खाने की दिक्कत रहती है, और उनका जो रहन सहन रहता है, मतलब उनको खाने का बोलो, पहनने का, ओढ़ने का सभी प्रॉब्लम आता है। और सबसे बड़ी बात है कि खाने का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम गांव वाले मिलके समझो हमारे जो भी हो सकता है हम गांव के लिए मदद किए, जो मिडिल क्लास के लिए समझो जो कुछ नहीं है उनके लिए हम एक पैकेज का ये किए, डिस्ट्रीब्यूट किए। पैकेज उसमें क्या क्या था सर? उसमें से अप्रोक्सीमेटली पूरा विस्तार। हाँ, उसमें क्या है, दाल, चावल, चीनी, और वहाँ से आपका मिर्ची पाउडर आता है, यानी ऐसे छोटे छोटे पैकेज करके दिए। कम से कम एक 10-12 केजी तक जो हो सकता है वो हमारे हिसाब से हमने दिया। वो वैक्सीन जब शुरुआत हुई थी, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को मिलाकर हर एक ग्रामीण की तरफ वैक्सीन पूरा कम्प्लीटली हर घर को, हर जितने भी एज वाले हैं उनको पहुंचाने की सुविधा की थी। तो उसके तहत आपके ग्रामीण में कितने वैक्सीन हुए हैं, अभी कितने बाकी हैं? हमारे गांव में कम से कम एक 7-8 हज़ार हमारी जनसंख्या है, उस हिसाब से कम एक 80% तो इधर हुआ है हमारे गांव में। और कम से कम और डेली और एक कम से कम एक ये हफ्ते में कम से कम हो गया तो अगर पूरा हो जाएगा हमारे गांव का वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन अभी चल रहा है, फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज? नहीं, इधर कैसा है, जैसा आज समझो जो देने वाले वो THO जो रहते हैं ना हॉस्पिटल के जो मेन इंचार्ज, उन्होंने कोविशील्ड भी देते हैं कई एक बार, या तो कोई वैक्सीन भी देते हैं। समझो आज एक फर्स्ट वैक्सीन आया तो कल सेकेंड डोज देते हैं वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पीछे के जो डॉक्टर है उन्होंने बोलते हैं कि बाबा आज हमारा ये वैक्सीन आया है। वो पहला हमको इन्फॉर्म करते हैं कि बाबा आज हम फर्स्ट वैक्सीन दे रहे हैं तो आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करो। तो वो हिसाब से हम सब लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि बाबा आज ये वैक्सीन हर कोई ले रहा है क्या वैक्सीन, या कोई दिक्कत तो पेश आ रही है? नहीं, हमारे को दिक्कत तो ऐसा नहीं आ रही। पहला थोड़ी दिक्कत आई हमें, लेकिन अभी तो चला है। वेरी गुड सर। अभी डेवलपमेंट के हिसाब से मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ। आप अभी रिसेंट 1 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के आसपास हुआ है अभी जो
वही तो 1 साल के अंदर अंदर तो आप इलेक्टेड मेंबर हुए थे, उसके बाद अभी बनकर अध्यक्ष एक 5-6 महीने गुजरा है। अच्छा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट के लिए कोई फंड अभी तक आपको नहीं मिला है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो इसी वजह से 15 फाइनेंस का तो फंड सभी जगह पे मिल चुका था, आपके ग्राम पे भी वो मिला होगा 15 फाइनेंस का। हाँ तो जी। उसके जरिए से आपने क्या डेवलपमेंट लाए? हमें 15 फाइनेंस का फंड मिला है, उस हिसाब से हमारे गांव में गटर का काम चला है और वहाँ से सीढ़ी का कौन कौन से गाँव में चला सर? बसुरता, कोनेवाड़ी और इधर गांव हमारे गांव में भी, उजगांव में भी, वहाँ से भी हमारे अम्बेडकर भवन का जो कंपाउंड का काम अभी रिसेंटली चालू है वो भी चला है। वहाँ से अभी 2-3 सीढ़ी का भी काम हो गया है, वहाँ से 1-2-3 रोड भी हुआ है। तो आप जीतने के बाद अभी अध्यक्ष बन के एक अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मंथ हुआ है, तो आप पूरे गांव को सर्वे किए होंगे, आप हो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो या पीडीओ हो या सारे सदस्य हो, आप सभी जाके जो देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट आना बाकी है सर आपके हिसाब से? अभी क्या करना चाहते हैं काम आने वाले दिनों में? हमारे आने वाले दिनों में तो हम ये चाहते हैं कि क्या सबसे पहले गांव में बिजली का जो मसला है वो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बिजली हमारे गांव में जाती है। वो हमने वो KPTCL से रिक्वेस्ट करके उसे वो उन्होंने बोला है कि वो हम पूरा करेंगे। फिर दूसरी बात जो हमारे गांव के रोड है या गटर है उनका सबसे पहले वो अच्छे से हो गांव के रोड, ताकि हमें आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और तीसरी बात जो है पानी का भी थोड़ा मसला चलता है इधर, फिर भी उसके लिए हमने जो गवर्नमेंट का स्कीम है जल जीवन योजना, उस पर हमने बातचीत करके जो हाई अथॉरिटीज़ है उनसे बात करके वो भी हम जल जीवन योजना जो है इधर हम लाने वाले हैं और वो अप्रूव भी हो चुका है। अच्छा, जल जीवन योजना के तहत मैं आपको यह सवाल करना चाहता हूँ, क्या बोरवेल के तहत आप वहाँ पे पानी लेके सप्लाई करना चाहते हैं या पीने का पानी के लिए फिल्टर वगैरह उसके लिए कुछ डेवलपमेंट? नहीं, वहाँ पे लेक छोटे जो कुएं जो है उससे हम वो योजना को हम यूजफुल लाना चाहते हैं। और उसके बाद में अगर हो सके तो जो फिल्टर हम बिठा सकते हैं वो भी बिठाना है। कितने फिल्टर की आपको जरूरत है सर? अभी प्रेजेंट कितने रनिंग है, कितने हैं जो डेड होकर है और नए कितने लाना चाहते हैं? क्योंकि हमारे गांव में एक 3 कुएं है और 1-2 जो कोनेवाड़ी और बसुरता में वहाँ एक ही कुआ है। वो हिसाब से जितना हमारे को लगता है समझो 5 कुएं है, वो हिसाब से हमारे को 5 फिल्टर लगा तो 5 फिल्टर हमारे लिए काफी हो जाएगा। यानी आपने बताया कि जनसंख्या यहाँ पे 7 to 8,000 समथिंग है। थोड़ा आसपास होगा। इतने लोगों के लिए अभी जो 3 काफी है या पहले वाला है इधर? नहीं, पहले वाला तो नहीं है अभी इधर। एक भी नहीं है 3 जो है इधर प्यूरिफाइड पानी इधर लेते हैं जो गांव में है। समझो इधर हमारे एक देवस्थान है मय करने में, उधर एक है, उधर से पानी लाके प्यूरिफाइड पानी जो है लाके वो पीते हैं। ऑलरेडी रनिंग है। उसके बावजूद अभी और 3-4 जरूरत है। अभी 5 की यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 4 to 5 चाहिए। अच्छी बात है सर। हर कोई जीतने के बाद एक ही बात करता है, पीने की पानी की सुविधा हो, लाइट का हो या बिजली का हो, यानी कि लाइट का मतलब है कि बिजली का हो या रास्तों के डेवलपमेंट के लिए। सर स्पेशली आपकी जवाबदारी होती है स्कूल्स और कॉलेजेस या आपके ग्राम के आसपास में कहीं स्कूल्स या कॉलेजेस हैं या आंगनवाड़ीज हैं, तो इसको डेवलपमेंट लाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपने क्या सोचा है? सबसे पहले तो हम बच्चों को क्या चाहिए, अभी समझो अभी हम बालवाड़ी जो रहते हैं, आंगनवाड़ी रहते हैं, उनके लिए उनकी सुविधा हम कैसे पूरी कर सकते हैं कि बच्चों को आज ज़रूरत क्या है, कि बाबा हम बच्चों को खाने के लिए क्या दे सकते हैं, उनके लिए आज ज़रूरत चीज़ क्या है वो हम उनको देना पहला हम ये चाहते हैं कि बाबा वो हिसाब से उनका जो उनकी भी जो भी ख्वाहिशें है कि बाबा बच्चों को कि हम पढ़ने के लिए बाबा उनको क्या लगता है वो पूरा दें। सर अच्छी बात है। अपाहिज लोग भी बहुत होंगे जैसा कि स्टूडेंट्स में, उनके लिए सुविधाएं की बहुत ज़रूरत होती है, कोई व्हील चेयर की ज़रूरत पड़े या कोई ऐसे। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी जो नेशनल फेस्टिवल जो मनाया जाता है इसमें, और गांधी जयंती के प्रोग्राम्स में हो या 2 अक्टूबर गांधी जयंती हो या कर्नाटक राज्योत्सव सितंबर में मनाया जाता है, तो इन फेस्टिवल्स के थ्रू स्कूल्स में क्या आप लोगों ने इंतजाम किए हैं? क्या इन गरीब बच्चों के लिए या साइकिल की सुविधा हो या कंप्यूटर्स की हो, ऐसे क्या काम करना चाहेंगे? अभी तो प्रेजेंटली जो अब कोरोना की वजह से तो हमने ये सुविधा अभी तो एक्चुअली 15 अगस्त था तभी हमने नहीं दे पाए क्योंकि अभी हमने सोचा कि अभी 26 कोरोना वजह से ये तो हमारे को ये था कि सर्कुलर था कि हम जो है वो सीधे सादे से बनाए। तो बाद में अभी जो 26 जनवरी आने वाले हैं तभी हम जो
हमारे हैंडीकैप लोग हैं जो भी है उनके लिए हम सुविधा देने का पूरा ये किए हैं। यानी आप चर्चा लोग की है। इसके बारे में चर्चा करिए हैं। किए तो क्या इत्तेफाक रखते हैं सर आपके पंचायत मेंबर्स और उपाध्यक्ष और आपकी जो बातचीत रखे थे आपने, तो ये सब क्या इत्तेफाक रखते नहीं, हैं? हमने तो सोचा है कि बाबा जो उनको लगता है, समझो व्हील चेयर की जरूरत जो रहती है उन्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लगती है उनको, वो दे, या तो सिलाई मशीन जो है क्योंकि वो घर बैठे कुछ काम कर सके, वो सब महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए। हाँ। और पुरुषों के लिए जो है बाबा व्हील चेयर की जरूरत रहती है क्योंकि उनके लिए आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। स्वयं उद्योग के खातिर एक ग्रामीण जो बहुत गरीब होता है वहाँ पे बहुत सारे तरबेती केंद्र की ज़रूरत होती है। जैसा आपने बताया टेलरिंग स्टिचिंग मशीन उन अपाहिजों को दे देंगे, अंगविकलर जो कहते हैं उनको देते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जनरल में भी बहुत सारे पढ़े लिखे हैं जो गरीब तबके के हैं, जो कोई पढ़ा नहीं है, अनपढ़ गवार है लेकिन गरीब है, तो इन लोगों के लिए तरबेती केंद्र की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो कोई साबुन की फैक्ट्री हो या मिनी इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, या मोमबत्ती बनाने वाला या अगरबत्ती बनाने वाला हो, ऐसे कोई भी सुविधा, या टेलरिंग हो, कंप्यूटर तरबेती हो, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? नहीं, अभी हमारे गांव में जैसे कि अभी इसके बारे में कोई भी गांव सिटी नज़दीक होने से सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिटी में ही काम के लिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे गांव में जो है अभी एक समझो एक मोमबत्ती का एक कारखाना है जो चलता है, वो क्या है जो वो प्राइवेट में है। अब हमारे गांव के लिए जो सुविधा चाहिए वो हिसाब से हम चर्चा करके उसके ऊपर ये करेंगे आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। आखिरी सवाल करते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जो ऑडियंस आपकी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपके ग्राम पंचायत के भी हो या जितने भी लोग देख रहे हैं, उन लोगों को ये कोरोना काल का ये थर्ड स्टेज जो अभी शुरू होने वाला है, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम पहली बात जो है हमने सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम सोशल डिस्टेंस जो है वो रखें और मास्क डालें और रेगुलर हैंड वॉश करें। वो हिसाब से जो भी हम वैक्सीन लिए, क्योंकि वैक्सीन लेना तो ज़रूरी है, और जो अभी थर्ड वेरिएंट जो आने वाला है उसके लिए हम ये सेफ्टी लेना बहुत ज़रूरी है, और जो कुछ हो सके हम उसके लिए प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। ಓಕೆ, ಬೆಹತರ आपने अब तक तो हमसे बातचीत की थी. ಸುಮಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com @ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಜ್ಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಾವೀದ್ ಎಂ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಹಿಂದೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinIndia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.